देखो एटा क्वेश्चन पढ़ितला 15 मार्क रो क्वेश्चन। लेट मी शेयर माय स्क्रीन सो दैट समस्त को देखा जबो। सो परीक्षा रे हमें केमिति आंसर लिखिबा सेटा हमें डिस्कशन करियो। ओके गोटे सेकंड। Okay, so let me share my screen. एटा गोटे क्वेश्चन हमर पडितला 2022-23 रे पडितला। ओके लास्ट ईयर रे कोन पडितला एटा कोन पडितला जे एनालाइज महात्मा गांधी's critics on western civilization and democracy। ओके एटा 15 मार्क रो क्वेश्चन हमरो ओपीएससी मेंस रे पडितला। ओके गांधी काहे कि हमरो वेस्टर्न सिविलाइजेशन और डेमोक्रेसी को जो क्रिटिसाइज करूथिले ता ऊपर तमे एनालाइज करियो जे पाश्चात्य सभ्यता एवं गणतंत्र परिप्रेक्षी रे महात्मा गांधी समालोचना को विश्लेषण करंतु। स्क्रीन देखा जाउछि तो? यस सर। ओके एटा होछि हमर ओपीएससी रो क्वेश्चन जोटा कि हमरो 2022 रे पडितला। लास्ट टाइम कोन पडितला? लास्ट टाइम देखे दोछि कोन पडितला जे critically examine Mahatma Gandhi's political philosophy. How does his concept of non-violence compare with Ambedkar approach of social justice? Okay, तो एटा हमरा पडितला 15 मार्क रे क्वेश्चन पडितला। ओके सो 15 मार्क रे क्वेश्चन हमरा एटा पडितला। सो माने आ ऊपर सब गांधी जो हमें पढ़िले व्यू ता ऊपर हमरा 15 मार्क रे क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पढ़ितला लास्ट टू लास्ट ईयर भी पढ़ितला। ओके सो फास्ट हमें डिस्कशन करियो जो गांधी जी कर फास्ट क्वेश्चन जोटा हमें डिस्कशन करियो जे तांकर थॉट कौन थिला गांधी जी का थॉट कौन थिला रिलेटेड टू हमरो वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी। मते फास्ट कुह किछि माने हमें डिस्कशन करिवा तापर हमें आ ऊपर टॉपिक ऊपर पढिबा कोन गांधी जी कर व्यू थिला एनी आईडिया वेस्टर्न सिविलाइजेशन ऊपर गांधी जी कोन कहउथिले एंड हमरो डेमोक्रेसी ऊपर हमर गांधी जी कोन कहउथिले विलेज और कॉटेज इंडस्ट्री विलेज और कॉटेज इंडस्ट्री आ कोन कहउथिले को हम जस्ट डिस्कशन करथिले हम वन बाय वन करियो वेस्टर्न सिविलाइजेशन ऊपर गांधी जी कर कोन व्यू थिला। ओके सोनाली ब्रेड लेबर ओके नहीं वेस्टर्न सिविलाइजेशन ऊपर हमर कोन ना वेस्टर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ऊपर गांधी जी कोन हमर व्यू थिला ना गांधी जी कहिले जे प्रोडक्शन बाय मास
rather than mass production by machine ଆମେ କହିଥିଲେ ନା ଗାନ୍ଧୀ ଭିଲେଜ ଆଉ କଟେଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଆମର ଫୋକସ କରୁଥିଲେ ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମେସିନ ଆସିବ ସବୁ କାମ ଯଦି ମେସିନ କରିଦବ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବେ ଯଦି ଗୋଟେ ମେସିନ 500ଟା ଲୁଗା ତିଆରି କଲା ତା 500 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଚାକିରି ମାନେ ଜବ ମାନେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଜୀବିକା ପଳେଇବ ତ ସିଏ କହୁଥିଲେ 500 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୁଗା ତିଆରି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା ତିଆରି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମାନେ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ରାଦର ଦାନ ଗୋଟେ ମେସିନ 500ଟା ଲୁଗା ତିଆରି କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ମାସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଗୋଟେ ମେସିନ ନ କରୁ ତା ବଦଳରେ ମାସ୍ ଲୋକ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରନ୍ତୁ ଓକେ ତେଣୁ ସିଏ ଭିଲେଜ ଆଉ କଟେଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଫରେ ଥିଲେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଏଗେନଷ୍ଟ ରେ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଯଦି ମେସିନ ଆସିବ ମଣିଷ ମାନେ ତାର ସ୍ଲେଭ ହେଇଯିବେ ଓକେ ତ ଏଇଟା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ଥିଲା ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀ ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଅପୋଜ କରୁଥିଲେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଭିଲେଜ କଟେଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭୋକେଶନାଲ ଏଜୁକେସନ ଆଇଟିଆଇ ୟା ଉପରେ ଆମର ଭୋକେଶନାଲ ଦଉଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେ ତମେ ପଢ ଆଉ ଶିଖ ଆଉ କମାଅ ତ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆଜିକା ଡେଟରେ କହୁଛେ ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏଣ୍ଟ କଥା କହୁଛେ ଭୋକେଶନାଲ ଏଜୁକେସନ ସ୍କିଲ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା କହୁଛେ ସବୁ ଗାନ୍ଧୀଆନ ଭ୍ୟୁରେ ଆମର ଏଗୁଡାକ ହେଇଛି ଓକେ ଆଉ କଣ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆମର ଏଇଟା କଥା ଗଲା ଆମର ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଉପରେ ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ଉପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଡେମୋକ୍ରେସି ଉପରେ କଣ କହୁଥିଲେ ଭିଲେଜ ପଞ୍ଚାୟତ ଓକେ ସିଏ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ନା କରୁନଥିଲେ ଏଗେନଷ୍ଟ ଥିଲେ ସାର୍ ଏଗନେଷ୍ଟ ଥିଲେ ଓକେ ଓକେ ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଫ୍ୟୁ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ପାୱାର ରହିବ ଯୋଉମାନେ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କାଉନସିଲର ମିନିଷ୍ଟର ସେମାନେ ହିଁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ଡିସିସନ ମେକର ରହିବେ ସୋ ଫ୍ୟୁ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ପାୱାର ରହିବ ଫର ପଲିସି ମେକିଂ ଆଉ ଡିସିସନ ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯାହା ଡିସିସନ ନେବେ କମନ ଲୋକ ନେବେ ମାସ୍ ଲୋକ ନେବେ ସେଥିପାଇଁ ପାୱାରଟା ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ହେବା ଦରକାର ପାୱାରଟା ଆମର ଭିଲେଜ ଲେଭେଲରେ ଦବା ଦରକାର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲରେ ଦବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଫ ଭିଲେଜ ପଞ୍ଚାୟତ କହୁଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆର 70% ଲୋକ ଆମର ଭିଲେଜରେ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତମେ ପାୱାରଟା ଭିଲେଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟ କର ତାଙ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାନେ ଫଣ୍ଡିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ କର ପାୱାର ପ୍ରୋଭାଇଡ କର ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆମର ଦେଶ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଡେଭଲପ ହେବ ତେଣୁ ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଗେନଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ଏଗେନଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ବିଲିଭ କରୁଥିଲେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଭିଲେଜ ପଞ୍ଚାୟତ କଥା ଆମର କହୁଥିଲେ ଓକେ ତ ଏଇଟା ତମର କଣ ହଉଛି ନା କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ଏତିକି ତ ତାକୁ ତମେ କେମିତି ଲେଖିବ ତ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଓକେ ସୋ ଲେଟ ମି ଶୋ ୟୁ ଦ ଆନ୍ସର ओके तो एटा तुमरा पड़ीतला 15 मार्क रा क्वेश्चन पड़ीतला ओके जोटा कि हमर 2022 रा क्वेश्चन थिला सो एनालाइज महात्मा गांधी's critique on western civilization and democracy ओके देखो जीएस आंसर लिखिबा अलगा ऑप्शनल आंसर लिखिबा अलगा सेथि हमर पर्सनल टिके पीएसआर पॉइंट ऑफ व्यू रे तमे लिखिबो एंड जोटा का कांसेप्ट वाइज हमें देखिबा सो এই যে মহাত্মা গান্ধীଙ୍କର ତମେ ইন্ট্রোডাকশন ରେ କଣ ଲେଖିବ ইন্ট্রোডাকশন ତାପରେ ଦିଟା ପାର୍ଟ ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশন এগেinst ରେ କଣ କହୁଥିଲେ ডেমোক্রেটিক ডেমোক্রেসি କୋ ଭଳି ହେବା ଦରକାର ସେଟା আমরা କଣ କହୁଥିଲେ ଓକେ ତ ପ୍ରଥମ କଥା ଅଛି ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କଣ ଆମର ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশন ଆଉ ମଡର୍ନ ଡେମୋକ୍ରେସି ଉପରେ ଥିଲା ଏଟା କୋଠି ଲେଖିଥିଲେ ସେ ସୋ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ's critics of western civilization and modern democracy is most powerfully articulated in his book तांकर गोटे बुक थिला जो हिंद स्वराज आमे कहउतले से लंदन जाइथिले जेतेबेले हमरो फेरी रे तो जहाज रे बसी बसी का गोटे बुक लिखिथिले जान होची हिंद स्वराज तो से हिंद स्वराज रे से कोन आर ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन आउ डेमोक्रेसी को मॉडर्न डेमोक्रेसी को से क्रिटिसाइज करके लिखिथिले तो से कहउतले कोन ही रिगार्डेड वेस्टर्न मॉडर्निटी एज ए मोरल एंड स्पिरिचुअल बैंकरप्ट प्रोजेक्ट से कहते जो खाली आमर जदि वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन को नबा इंडस्ट्रियलाइजेशन नबा से माने खाली प्रॉफिट ओरिएंटेड जो कंपनी माने अच्छन से माने केमिति काम करछन खाली तांकर लोक मानकर भलो पई किछि नै
खाली से माने मटेरियलिज्म प्रॉफिट हमर केमती अधिक प्रॉफिट हबो हमें केमती हम कंपनी केमती अधिक ऊपर को जीवो तो ता ऊपर से माने मोर फोकस करंती रादर देन हमर सोसाइटी रो डेवलपमेंट पई तो सेति पई से कहउतले जे मोराली एंड स्पिरिचुअली बैंकरप्ट प्रोजेक्ट ड्रिवन बाय मटेरियलिज्म वायलेंस मेकानाइजेशन ए सब सो गांधी जो विजन थिला rooted in a civilization alternative, a spiritual, ethical, and self-retained grounded life grounded in Indian tradition. तो आमे देखिबा जे वेस्टर्न सिविलाइजेशन अगेंस्ट रे हमरो गांधी जी कोन कहउतले गांधी जी मटेरियलिज्म और इंडस्ट्रियलिज्म अगेंस्ट रे थिले ओके गांधी जी saw western civilization as an obsessed with body comfort and economic growth से कहउतले लोक माने वेस्टर्न सिविलाइजेशन कोन केमिति खाली प्रॉफिट ओरिएंटेड रहइबो निजे केमिति कंफर्टेबल रहिबे ओके तो सेमानकर कोनोसी मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कथा नाही लोक मानकर डेवलपमेंट हो सोसाइटी रो डेवलपमेंट हो तार वेस्टर्न सिविलाइजेशन ता पई बदर जमा करंती नाही ओके गांधी जी कहउतले जे इंडस्ट्रियलाइजेशन अगेंस्ट रे थिले काहे की ना ये कही जे इंडस्ट्रियलिज्म डिह्यूमनाइज द इंडिविजुअल ये कहबे जे इंडस्ट्रियलिज्म जदी आसीबो हमर कोन हबो ना हम जो इंडिविजुअल लोकंकर जॉब पळेबो सो टर्निंग देम इनटू स्लेव ऑफ मशीन हमें जदी इंडस्ट्री आसी जीवो कोन हबो ना हमें मशीन रो स्लेव हे जीवो सब कोन करिवो मशीन ही करिवो रादर देन हमें कोन हमको किछि माने हमर जॉब पळेबो he opposed the idea of mass production instead advocated for production by masses मु कहली जो तुम कथा जे सी चाहूतिबे जे बहुत लोक प्रोडक्शन करंतु जे 5 जण लोक खंडे खंडे हमर लुगा जदी तयारी करिवे सेटा हो जे ठीक रादर देन हमर गोटे मशीन 5 टा लुगा तयारी करे सो ही अपोज द आइडिया ऑफ मास प्रोडक्शन बाय मशीन rather than से कौन advocate करथले production by masses तो सी से हिंद स्वराज बहिले लिखितले the civilization this civilization is such that one has only to be patient and it will be self destroy तो एमिति तमे तांकर जो स्टेटमेंट गुडा को निजे लिखि परिबो ओके तो गांधी argued the modern western civilization has abandon the dharma duty in favor of rights creating a society with no moral compass कहले एठी जो मॉडर्न वेस्ट देखो एबे तमे फॉर एग्जांपल तमे एठी लिखि परिबो ओके एठी एग्जांपल लिखि परिबो ओके जेमिति कि हमर रशिया यूक्रेन वार होची ओके रशिया यूक्रेन वार ए रशिया यूक्रेन वार कोन पई होची ना पावर ग्रैब करिया पई कि बे इस्राएल आ ईरान ऊपर हमर वार होची ना कोन पई एमाने जो हमें कहूचे वार करूछंती केवल पावर ग्रैब करिया पई से माने कोन पई ना निज निजर बेनिफिट पई ही वार करूछंती इस्राएल हमें कहूचे जे गाजा जो हमें ऊपर जो तांकर जो टेरिटरी जो अछि से टेरिटरी को एक्वायर करिया पई ईरान देखला जे गाजा और पैलेस्टाइन जाउची से माने हमर मुसलमान लोक मु एठी से मानकर लीडर तेनु मु तांको प्रोटेक्ट करिवि तेनु समस्त एठी पावर ग्रैब करिया पई हमर रशिया यूक्रेन भीतर जे वार होची यूएस यूक्रेन को हेल्प करूची नाटो ग्रुप रो गोटे मेंबर हिसाब रे यूक्रेन को नबागु चाहूची तो समस्त एठी समस्तंगर प्रभुत्व विस्तार करिबारे व्यस्त अछनी पावर ग्रैब करियारे व्यस्त अछन तेनु ये गांधी जी कहिले एबे जो आमे सोसाइटी रे रहुचे कोल्ड वार चलीची वार चलीची कॉलोनाइजेशन चलीची समस्ते हमर निज निजर प्रभुत्व विस्तार करिबारे व्यस्त अछन ओके एग्जांपल दबो इस्राएल वर्सेस ईरान एंड तमरो रशिया वर्सेस यूक्रेन तो आम भितर कौन ना आम भितर कौन सी मोराल समस्ते आम जो गांधी जो नीति आमर थिला नॉन वायलेंस वे आम रहिबा पीसफुल आम कोएक्जिस्टेंस करबा समस्ते तो सही भलिया सोसाइटी वर्तमान नहीं आम समस्ते वेस्टर्न सिविलाइजेशन को एतला अडॉप्टेड करूचे तो वेस्टर्न रो जो फिलोसफी रहिला जे प्रॉफिट ओरिएंटेड रहिबा तांकर मोराल किछि नहीं से माने वायलेंस
इंपेरियलिज्म रो आइडियोलॉजी को नहीं चलुछंती। इंपेरियलिज्म माने कोन ना तमे निजे सब एरिया को कैप्चर करिकि केमिति तांको ऊपर पावर ग्राफ करके रखिया। फॉर एग्जांपल तमे देखो ब्रिटिश समय रे ब्रिटिश इंडिया को कैप्चर करथिला, श्रीलंका को कैप्चर करथिला, चाइना को कैप्चर करथिला, इंडोनेशिया से जो आमे कहले बर्मा मलय सब एरिया को कैप्चर करके रखिथिला। तेणु तांकर कोन आइडियोलॉजी जे निजर साम्राज्य केमिति विस्तार करिवा। ओके इंपेरियलिज्म कथा में कहूचे तो सेटा हमर वेस्टर्न सिविलाइजेशन आसी बोली कर। ओके सो गांधी जी कौन कहते जे हमर जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन एगेंस्ट हमर गांधी जी थिले। ओके सो बुझी परछु ना बुझी परनु? आज्ञा सर। Yes, sir. ओके सो एटा तमे मने रखिबो। तेणु तमे देखिबो जे गांधी argued that modern civilization has abandoned dharma or duty in favor of rights and creating a society with no moral compass। तो जहाँ भी जी साइंस टेक्नोलॉजी जहाँ भी हमरो समस्ते क्रिएट करूछंती समस्ते निज निजर प्रभुत्व विस्तार करिया पय। हमर एटम बम कहीं तैयारी कराइतला। एटम बम हमरो एटॉमिक एनर्जी हमरो प्रोडक्ट्स एनर्जी प्रोडक्शन पय हमरो एटा को हमें डिस्कवर करा जाइतला जे हमें एटॉमिक रु एनर्जी प्रोड्यूस करि परिबा। तो सेहिति पय किंतु हम ताकू कोन कले मिस यूटिलाइज करिके एटम बम तैयारी कले। तेणु जहाँ भी जो साइंस टेक्नोलॉजी जहाँ भी तुम डेवलप करूच वेस्टर्न एमाने कौन करूछंती ना टू क्रिएट वायलेंस और इंपेरियलिज्म। ओके आज का डेट रे देखो रशिया गोटे न्यूक्लियर पावर, इस्राएल गोटे न्यूक्लियर पावर। तो एमाने दबदबा निजर बढ़ाइबा पय ए भलिया। सो क्रिटिक ऑफ मॉडर्न मेडिसिन एंड लॉ। So Gandhi criticized medicine for enable people to indulge in excess without consequence. He criticized modern law for serving the interest of rich, not fostering the reconciliation of the truth. ये कहले जो मॉडर्न जो लॉ है ची एटा गरीब लोक मान को पई नुहे रिच मान को पई। तम पाखरे यदि पैसा नाही आज का डेट रे तमे यदि भूल भी माने ठीक भी अच्छा भूल हे जिवो। रिच लोक मान पाई ही हमर लॉ है छि। कॉमन लोकन पाई हमर ट्रुथ आउ लॉ से मान तो कैटर करि परिबेनी। तो एमाने एमिति माने हाई माने जो माने नामी दामी लॉयर को हायर करिवे हमर को प्रूव कर देबे जे यू आर रॉन्ग। से माने जे भूल करि छि जे क्राइम करि छि से इजीली खसी के जीवो। ओके सो क्रिटिक ऑफ मॉडर्न मेडिसिन मॉडर्न लॉ तो ये हमरा गांधी जी क्रिटिसाइज करथले। सो गांधी जी हमें देखिबा डेमोक्रेसी को नेकी कोन कहले। डेमोक्रेसी को नेकी कहले जे गांधी व्यू द मॉडर्न डेमोक्रेसीज as annihilating where people surrender their moral autonomy to the representative। हमें देखो जेतेबेले वोट होउची सेतेबेले देखो केते हमको गां को आसिक बुलुछंती हमको रिक्वेस्ट करूछंती तमरो पाद धरि की भी मुंडिया मार देबे जने तमरो एमएलए एमपी। ओके हसी की कथा कह देबे तमरो जो दिन तमे से माने इलेक्टेड हेई गले 5 वर्ष जाय तांको देखा मिलिबा। तमे तांको तमे गोड़ा हाथ धरि कि से मुंडिया मारी के वोट नै थिबे किंतु तमे जदी जीव तुमको चिन्हिबे नेबे। ओके तो ये सही भले गांधी कहते जो मॉडर्न डेमोक्रेसी इज एलिनेटिंग वेयर पीपल सरेंडर देयर मोरल ऑटोनॉमी टू रिप्रेजेंटेटिव। हमें पूरा हमें कोन हमर पावर सब देई दोचे जहा को रिप्रेजेंटेटिव मानकू से माने बिल्कुल हमर कोन ना एक्सप्लॉइट करछन। he described British Parliament as sterile women and a prostitute बोली से कहते changing not due to conviction but pressure। ओके सो से कथा से कहते जे ब्रिटिश रा पार्लियामेंट जो अच्छी तो से पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते से कौन कहते जे रादर देन सेंट्रलाइजेशन बदले डिसेंट्रलाइजेशन हवा दरकार। सर्वोदय कथा हमर कहते जे डेवलपमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत कथा कहते सही कथा हमर कहते। सो गांधी जी हमर सस्पिशियस ऑफ द मॉडर्न स्टेट he equated with the institutionalized violence। से कहले जदि पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करिबा किछि लोकन हाथ रे पावर टा रहिबो आउ से माने कोन करछंती
ना इंस्टीट्यूशन को मिस यूटिलाइज करछन। तमे देखो फॉर एग्जांपल हमें कहबा जे बे जो इनकम टैक्स हो कि ईडी डाकी के हमरो विजिलेंस हला, ईडी हला, सीबीआई हला, तो देखो सबु बेले हमर जो माने अपोजिशन रे अछन तांकू ही रेड करूची। ता बोली कोन हमर कोन सबु बीजेपी लीडर माने एमती माने पूरा नीट एंड क्लीन आउ जो माने अपोजिशन रे रहउछन समस्ते करप्टेड लीडर। कौन एमती बीजेपी रे केही भी करप्टेड लीडर नांती, किंतु तमे देखो जत्ते भी इंस्टीट्यूशन अछि दे यूटिलाइज दिस इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट देयर अपोजिशन पार्टी। तेणु एइथरे कोन ना जो माने पावर को आसुछंती दे आर मिस यूटिलाइज द इंस्टीट्यूशन। ओके, सो गांधी से कथा कहउथिले जे एगुडाक इंस्टीट्यूशनल वायलेंस बोली हमें कहथिले। जो मॉडर्न स्टेट हमें कहउथिले तो इंस्टीट्यूशनल वायलेंस कथा कहउथिले। ही बिलीव सेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी प्रोड्यूस ब्यूरोक्रेटाइजेशन डोमिनेशन। एबे देखो हमें जो सेंट्रलाइज कहिचे हमें लोक मान को पठेइचे वोट दे की पठेइचे मन को, तो से माने डोमिनेट करूछंती। जो माने आईएएस अछंती, जो माने ओएएस अछंती, सब बाबू कल्चर जो हमर चलीचे। ओके, हमें माने जो माने कॉमन लोक तम मान पई किछि नै। ओके, जो माने आईएएस हेले, ओएएस हेले, मिनिस्टर हेले, से मान को सब फैसिलिटीज सब एवरीथिंग, सो रिड्यूसिंग द पीपल टू पैसिव सब्जेक्ट बोली से कहते। सो गांधी जी सेति में हमर कोन ग्राम स्वराज कथा कहउथिले, स्वराज कथा कहउथिले, सेल्फ रूल कथा कहउथिले, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत कथा कहउथिले। तो गांधी जी हमर सर्वोदय स्वराज कथा कहउथिले, नॉट जस्ट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस बट सेल्फ रूल एंड मोरल ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल एंड विलेज। ओके, तो गांधी जी का व्यू हमर कोन ना ये सेंट्रलाइजेशन अगेंस्ट थिले। पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट को गोटे स्टेराइल वुमेन एंड प्रोस्टिट्यूट बोली कहउथिले। ओके, एंड मॉडर्न स्टेट जोटा रहिला हमर हमें कहूचे, तो एटा हमर कोन होची ना इंस्टीट्यूशनल वायलेंस कथा हमर कहउथिले। ये कहउथिले सेंट्रलाइजेशन जुगु डेमोक्रेसी को मोर ब्यूरोक्रेटाइजेशन होची। ब्यूरोक्रेट माने को माने जो आईएएस माने, ओएएस माने, सेक्रेटरी माने रहिले, तो से माने ही डोमिनेट करिके चाउछंती। ओडिसा को चलौथला किए? ओडिसा को चलौथला जने आईएएस अफसर ना नहीं। ओडिसा रो डिसीजन मेकर टोटल 5-6 जन आईएएस थिले जे कि पूरा ओडिसा को कंट्रोल करथिले। तो हमें कहउछि जे ब्यूरोक्रेट से माने होछन आईएएस अफसर माने होछन ब्यूरोक्रेट। तो ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ द हमरा सिस्टम कर दो। तेणु ए जो सिस्टम रहिला तो सेटा हमर गोटे सेंट्रलाइज गवर्नमेंट रा। गांधी जी कहउथिले डायरेक्टली तमे विलेज जेहेतु 70% लोक हमर गां रे रहउचंती, तेणु तमे डायरेक्टली पावर गां को दे दियो। आ गां रे जो लोक माने रहउचंती से माने डिसाइड करिवे कोटा भलो गां पई, कोटा खराब गां पई। किंतु गांधी जी भी जो कथाटा कहउथिले ठीक कथा नुहे। तमे भाबो जे इंडिया रे पूरा पावरटा गां को दिया हेतन, केही का कथा मानंतनी, हमर सब गोटे केओस हे जैथन। हमें जदि कहउछ हमें एबे गोटे सेंट्रलाइज अछि बोली समस्त मानुछन। दीटा एकर पॉजिटिव किछि अछि, नेगेटिव भी किछि अछि। गांधी जो कहउथिले जे लोक मान को तमे अधिक लोक रे मुसा मारि हेबन, तमे गोटे बिल पास करिया पई कोन ताले पूरा देश पई को बिलटा के तयारी करियो? गाँ गाँ बाला बसी तांको कथा देखिबे तो इंडिया तू जदि ऑपरेशन सिंदूर भलिया जो टेररिस्ट अटैक हला तांको रिप्लाई किए दबो? गाँ को गाँ मिसी की तांको पुनी एकजुट करिकी करिबा डिफिकल्ट ना नहीं। ओके, तो सेति पई हमें जो कहूचे गांधी जी जो कहउथिले सबु आइडियलिस्टिक कथा, रियलिस्टिक कथा किछि कहउन। ओके, तेणु स्वराज कथा कहउथिले, सर्वोदय कथा कहउथिले। ये कहउथिले कि बिल्कुल हमरा कोन होची ना इंडस्ट्री रहिबनी, आमे चरखा इकोनॉमी कथा कहउथिले। आमे समस्त कोन करिबा ना सूता रु आमे कोन करिबा ना तुला रु आमे कहउचे कॉटन रु आमे जो आमे कहउचे तुला रु आमे सूता बाहर करिबा, सूता रु आमे कोन करिबा ना लुगा तयारी करिबा। चरखा इकोनॉमी समस्त बसी कि आमे जो अरट जो चरख जो आमे कहउचे चक ए चरखा तो ताकू बुलेबा सेतिर सूता सो बाहर करिके हमें
ନିଜେ टेक्सटाइल तमे जदि आमे समस्त एई भलिया करिबा हमरो ओनली विलेज और कॉटेज इंडस्ट्री रहिबो ताल तमे भाबो इंडिया केते डेवलप होबो सब कंट्री माने आगु जिबे आमे पछुक रहि जिबा आमे जो कहूचे आमे गोटे वर्तमान वर्ल्ड रो 4 नंबर इकोनॉमी वाइज वर्ल्ड रे आमे 4 नंबर अछि आमे 3 नंबर होबा को चाहूचे यूएस चाइना पर इंडिया आसीबो ओके तेणु आमे जेतल 4 नंबर हबा आमे जदि समस्त बसिक इंडस्ट्री को सपोर्ट न करिकि खाली निजे खाली मैनुअल वर्क करिबा एंड विलेज इकोनॉमी कॉटेज इंडस्ट्री गुडा को आमे जदि फोकस न करिबा ताले आमे डेवलप हे परिबानी ओके तेणु आम इंडिया रे देखो दीटा जाक चले इंडिया रो जो इकोनॉमी आमे मिक्स टाइप रो इकोनॉमी आमे प्राइवेट सेक्टर भी अछि पब्लिक सेक्टर भी अछि साइड बाय साइड चलछि हमरो एनटीपीसी ओएनजीसी एवडा पब्लिक सेक्टर कंपनी हमर अडानी अंबानी एमाने भी अछंती ओके तेणु आमे प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर को बोथ को प्रमोट करिबा इंडस्ट्री प्लस हमर जो विलेज और कॉटेज इंडस्ट्री ताको भी प्रमोट करिबा सब को मिक्स कले ही हमर बेटर चलिबो जोटा कि इंडिया रे चली छी तर मेक इन इंडिया रे हमें कोन कले निजे स्मॉल स्मॉल प्रोडक्ट हमें तयारी करछे निजे हम देश रे ही प्रोडक्ट करियो प्रोडक्ट तयारी करियो सब बुझी पाले ना नहीं तेणु गांधी जी जो आइडियोलॉजी हमर थिला गांधी जी हमर सबु आइडियालिस्टिक कथा कहउतले माने जोटा रियली प्रैक्टिकल करी हबनी से भलिया कथा कहउ ओके गांधी जी कहउतले जे माने मो एनिमी भी मोर गोटे पार्ट जी मोर एनिमी मोर जे शत्रु से मु ताको एमती किछि कहिथि बोली से मोर शत्रु हेछि तेणु जो पर्यंत मु ताको कन्वर्ट न करिछि से मते बाडै लेबे कि मो प्रति जहा भी रहिले मु ता विषय खराब भी भाबिबेनी मत मो अगेंस्ट जहा करि दो मु किंतु ता अगेंस्ट किछि खराब भाबिबे कि ता अगेंस्ट कोनोसी एक्शन लेबे नॉन वायलेंस वे रे रहिबी ओके तो गांधी जी सेटा हमर कहउतले किंतु आज के डेट रे प्रैक्टिकली सेटा बहुत कम लोक करिवे सो गांधी जी एटा हमें कहले सो पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स ये कहउतले he believe western democracy diverse the politics from spiritual and ethics ये कहउतले तांकर स्पिरिचुअल और एथिक्स किछि नहीं पॉलिटिक्स संगे एबे देखो पावर ग्राफ करिया पई माने से माने किछि भी हद तक जाउछन माने कॉमन लोकन को तुम भाबो रशिया यूक्रेन वार तो होउछि दीटा कंट्री ईगो पई किंतु ता भितर केते लोकंकर जीवन गला तेणु एमानकर जो एथिकल वैल्यू आमे कहउछे तो एथिकल वैल्यू से मानकर नाही ही बिलीव दैट वेस्टर्न डेमोक्रेसी डाइवर्स द politics from spiritual and ethics. Gandhi called the enlightened anarchy, where self-regulating individual would make the state irrelevant. ମାନେ ତାଙ୍କ କଥା କେତେ ଗୁଡେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କଥା ଠିକ ଲାଗୁଛି ତମେ ଭାବ ଯେ ଦିଟା କଣ୍ଟ୍ରିର ଲୋକ ମାନେ ମିନିଷ୍ଟର ସେମାନେ ଡିସାଇଡ କରୁଛନ୍ତି କମନ ଲୋକଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କି ମରିବେ କି କଣ ହବ ତମେ ଭାବ ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ୱାର ର ଗୋଟେ मेडिकल जोटा कि सबू छोट पिलांकर शिशु मेडिकल से 200 पिलांकर जीवन पड़ेगा तेणु ये जो आमर जो इंडिविजुअल माने रहउछन सेल्फ रेगुलेटिंग इंडिविजुअल जो रहउछन दे मेक द स्टेट इरिलेवेंट हमें कहउछ ओके सो ये कहउछन जे पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स सेमान जो पॉलिटिक्स करछन तांकर किछि एथिकल वैल्यू नाही ओके तो जेतेबेले लेखुछ तमे फाइनली कौन करिवो ना तमे किछि थिंकर और इन्फ्लुएंसर मानेकर ना लिखिबो जेहेतु एटा हमर जीएस न पॉलिटिकल साइंस तेणु तमे कौन करिवो जे गांधी जी को जेते आंसर लिखुछ किछि थिंकर और इन्फ्लुएंस का ना दबो नेमति कि लहला टॉलस्टॉय तो गांधी जी इथि इंस्पायर्ड हेतिले गांधी जी बिलीव इन नॉन वायलेंस और मोरल फोर्स अगेंस्ट द स्टेट एटा कोठु से हमरो इंस्पायर्ड हेतिले टॉलस्टॉय सिविल डिसोबीडिएंट एज ए मोरल ड्यूटी अगेंस्ट अनजस्ट लॉ हमर एटा कोरियन कुटु हमर
इंस्पायर्ड हेतले रस्किन कोठ हमर कोन ना रिजेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म जो इंडस्ट्री गुडा को अछि जो माने कि कोन करंती ना ओनली प्रॉफिट ओरिएंटेड एबे हमें कहूचे हमर इंडिया रे को लोक तो हमर 5000 रोजगार करि परनी माने पूरा मास जाक किंतु किए तो 5000 कोटी टंका पुआ बाहागर रे खर्च करछ तो अंबानी तांको पुआ बाहागर रे 5000 करोड़ खर्च करछन तो सेमानकर अंबानीकर कुआ जे प्रति घंटारे हमरो 185 कोटी टका से माने रोजगार करछन और तमे आखी पक्के की झलक उठेला भितरे तांकर 2 लाख रुपीस इनकम हुए तेणु हमर जो इंडिया रे हमें कहूचे जे जो कैपिटलिज्म कथा में कहूचे कैपिटलिज्म माने कोन ना प्रॉफिट ओरिएंटेड प्राइवेट सेक्टर कथा में कहूचे ओके तो सेही कथा में कहूचे तो एटा हमर कोन ना से कैपिटलिज्म एगेंस्ट रे थिले इंडस्ट्रियलिज्म एगेंस्ट रे थिले से कोन कहउथिले ना लोक मानन को हमर गांधी जी थियोरी ऑफ ट्रस्टीशिप हमें पढ़िथिले जे जहा तम पाखे धन अछि हम चलिया पई जति दरकार सेति रखी के लोक मान को दान कर दियो यू आर नॉट द ओनर ऑफ योर प्रॉपर्टी से कहउथिले तम पाखे जो प्रॉपर्टी अछि सेटा तमर नहीं तुमको जति दरकार सेति रख आ बाकी तक लोक मान सोसाइटी डेवलपमेंट पई दे दियो सो दैट समस्त डेवलपमेंट हो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जनक हाथ रे हमर कंसंट्रेशन हे कि न रहो अन्य मान को हमर डिस्ट्रीब्यूट करा जाऊ वेल्थ बुझी परछ ना नहीं तेणु ए जो गांधी जी ए जो हमें कहले इंडस्ट्रियलाइजेशन अगेंस्ट रे थिले ओके नॉन वायलेंस मोरल फोर्स कथा कहले टॉल्स्टॉय रस्किन रिजेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म इन फेवर ऑफ इक्वालिटी एंड कम्युनिटी लिविंग ओके तो यही वर्तमान से समय तो आम कहले जे एटा तो आम फिलोसोफर मानकर जो थॉट्स को गांधी जी यूज करथिले किंतु वर्तमान टाइम रे जो मैंने आम पॉलिटिकल साइंस जन आम कहवा फेमस पर्सनालिटी आशीष नंदन किंवा टिके वुमेन has interpreted Gandhi's critique as a civilization alternative to the West, not just a rejection but a deeper questioning the modernity itself. गांधी जी जो हमरो हमें जो क्रिटिसाइज करथिले हमरो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को रियली से बहुत डीप क्वेश्चन पचारथिले कि रियली जो हमें कहूचे सिविलाइजेशन कथा कहूचे तो ये सिविलाइजेशन समस्त बेनिफिट पाई ना फ्यू लोकंकर बेनिफिट पाई जो इंडस्ट्री आसीबो सीए निजर बेनिफिट पाई ना अन्य मानकर बेनिफिट पाई ओके ठीक अछि तो एटा हमरो तापर फाइनली कंक्लूजन में कोन लिखिबो जे हमरो क्रिटिकल इवैल्यूएशन यदि करबो स्ट्रेंथ कोन ना गांधी फोरसी द क्राइसिस ऑफ मॉडर्निटी तो आमे कोन करूचे ना देखो आमे मॉडर्निटी ना रे डेवलपमेंट करूचे किंतु कोन करूचे ना हमरो पूरा एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड करूचे डिग्रेडेशन करि चलेचे ना नहीं तमरो डेवलपमेंट आमे जोठी फैक्ट्री लगोचे आगे गछ को काटुचे आज का डेट रे जदी वर्ल्ड रे ते प्रॉब्लम हेची बिकॉज ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट जो एते हमरो कार्बन डाइऑक्साइड हमरो एटमॉस्फेयर को छाडी छंती सेही कार्बन डाइऑक्साइड जाई कोन करछि हीट टा को ट्रैप करूछि हमें जो ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस कथा में लास्ट क्लास रे कम जो जीएस रे पढ़ी थिले तो सी कोन करूछि ना तमरो जेते इंडस्ट्री आसीबो सी सब कोन करिवो ना कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर को छाड़िबो ए कार्बन डाइऑक्साइड गुडा कहंती ग्रीन हाउस गैस जेतेले अर्थ टा सूर्य किरण टा आसी के अर्थ सरफेस रे पडुची ओके सूर्य किरण आसी के अर्थ सरफेस रे पडुची तो सी कोन होची
कहि दउछि तुमको ओके तो सूर्य किरण एठी हमर सन रहिला तो सन रु जतले हमर एटा हला अर्थ तो एठू जतले अर्थ सरफेस रे पडुची एटा कोन हीट होची हीट हैला परे ये हीट टाको रेडिएट करिवो आप ता पुनी गोटे जिंस गरम हो माने ठंडा हो ना नहीं तो हीट टाको जतले ये छाड़ीबो तो एठी केते बडे गैस अछंती सी कोन करछंती हीट टाको एटमॉस्फेयर रे कोन करछंती ट्रैप कर दउछंती माने बाहर को जिबा को दउ ना जा फल रे कि एटमॉस्फेयर टेंपरेचर बढ़ी जाउछि सेति पे हमको अधिक काहे की गरम होछि तमे तालचेर काहे की अधिक गरम ना सब इंडस्ट्री सेठी नालको हला तमरो एनटीपीसी हला कोल इंडिया हला टाटा स्टील हला जिंदल तो एते इंडस्ट्री यदि आसीबो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल से एरिया रे अधिक तो सेति पे देखिबो ओडिसा रे तालचेर सब हॉटेस्ट प्लेस काहे की सेठी कार्बन डाइऑक्साइड तेनु ए कार्बन डाइऑक्साइड तो अधिक हीट टाको ट्रैप करिया जबु हमर एटमॉस्फेयर टेंपरेचर बढ़ी जिवो तमे कहबा एटमॉस्फेयर टेंपरेचर बढ़ी गले कोन हबो तमे निजे जानछ तार कन्सिक्वेंस अधिक खरा हेले कोन हबो मरुडी हे जिवो अधिक खरा हेले कोन हबो ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो आइस गुडा गछंती भास सेउडा को मेल्ट हेबे मेल्ट हेले कोन ना पानी रे आसी मिसिबे पानी रे मिसिले कोन हबो ना सी लेवल राइज हबो आइलैंड कंट्री मालदीप ए सब कंट्री गुडा को बुडी जिवे 21 मसिया सुधा से माने मैप रे नथिबे पानी भितरे ही थिबे ओके अदिनिया वर्षा एते जोरे हबो जे बन्या आसीबो तमरो तमे भाबो जोठी बिल्कुल वर्षा हुएनी सेठी मिडिल ईस्ट रे बन्या पाकिस्तान ने बन्या तो ये सब कोन पई ना में डेवलप ना रे इंडस्ट्रियल डेवलप ना रे गच्छ काटी चलছে आज का डेट रे हमें कहूचे जे जो हमें को 70-60% बायोडायवर्सिटी लॉस हे गेला चिता बाघ जोटे थिले 1950 मसिया पर अब देखा ना ओके तो जो भले हमें तुम भाबो आगुरु जो भले हमें एते सब जिंस डेवलपमेंट ना रे एते समस्त प्रॉफिट ओरिएंटेड तमे जहा खाउछ भी केमिकल ना नहीं जहा होची बिना हमें आगुरु कोन करथले हम जेजे आपा माने देखो सब 80-90 वर्ष बंची जाउथले काहे कि ना ऑर्गेनिक खाइबा सब खाउथले गोबर खतरे सब तयारी होतला एबे तो सब सारा पीडिया रे ही सब तयारी होची तनो हम हेल्थ प्रति डिटोरिएट होची तनो इंडस्ट्री ना रे हमर कोन होची ना एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन होची एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड होची ओके तो सेहिति भाई हमें कोन कहले केतेक दृष्टि रु हम जो क्रिटिसाइज करथिले जे इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन होची हमर एलिनेशन होची कंज्यूमरिज्म तो से माने केवल कोन फोकस करछने हमें केमिति अधिक प्रॉफिट ओरिएंटेड हबो अधिक लोकन को हम जिंस बिकी के हमर अधिक प्रॉफिट ओरिएंटेड तो तापर से कोन एम्फासिस ऑन एथिकल पॉलिटिक्स कहले हमें जो पॉलिटिक्स होची सेटा एथिकल नो पावर ग्राफ पे हमर चले छै देखुछ सेल्फ रिलायंट कथा हमर कहउथिले जे हमर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत कॉटेज इंडस्ट्री सेति पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कथा कहउथिले जेमिति कि हमें कहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत कथा कहउथिले व्हिच इज रेजोनेट द पोस्ट डेवलपमेंट एंड डीग्रोथ द थिंकर टुडे ओके तांकर लिमिटेशन कोन सीए his critique is often seen as romantic and utopian ignoring the benefit of modern institutions सी जरा तमे कहिबो एमे हमर मॉडर्न इंस्टीट्यूशन रहबन लाइक हमर यूनिवर्सल सफ्रेज समस्त को हमर वोटिंग राइट हमर दिया जीवन जति ओके पब्लिक हेल्थ कथा हमर जदि न रहइबो तो ए सब हमर कोन होची ना गांधी जो कहउतले जे नाही हमर लार्ज स्केल इंडस्ट्री रहइबनी मॉडर्न साइंस हमर रहइबनी ओके साइंस रहिले हमर एई भले एटम बम तयारी करी कि हमर मिस यूटिलाइज हो ता बोली कोन हमें साइंस एंड डेवलपमेंट ए सब छाडी दबा हमें भाबो साइंस जोगु मनीष आज जाई कि कोठी चंद्र रे पहुंच परछि मनीष आज शुक्र ग्रह को हमें एग्जामिन करूछे तमे फ्यूचर रे जदि देखिबो जे नाही लाइफ रो पॉसिबिलिटी जे हमर शुक्र ग्रह रे अछि ना नै हमें एथि जोगु हमें कोन करू पारुछे ना तमरो सबु हमरो कहबा जे जो जोडा को कैंसर को ट्रीटमेंट कला भलिया भी हमर माने टेक्नोलॉजी बाहर कर चले ओके जो टी सेल थेरेपी कार टी सेल थेरेपी हमें कहूचे हम बखरे टेक्नोलॉजी जोगु हमें कोन करूचे ना तमे रिमोट एरिया रे रही कि भी पाठ पढ़ी पड़े नहीं तो हम भाव टेक्नोलॉजी न था इंटरनेट यदि हमें प्रॉपर डेवलपमेंट करी न थांते ओके ताहले कोन होता ना हमें जेमती पढुचे वर्तमान पढी ही न था सो
जो गांधी जी रिजेक्शन करुले मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री तो से गुड़ाक वर्तमान टाइम रे तो रिलेवेंट नो गांधी कथा तमें जदि आजिका डेट रे इंडस्ट्री डेवलपमेंट करबनी मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी रो डेवलपमेंट करबनी तमें ताहले वर्ल्ड रे गोटे लीडर हिसाब रे आगु जाई ही परिबनी ओके एंड फाइनली कंक्लूजन कौन लिखिबो जे गांधी's critique on western civilization democracy was not amara realistic nuhe but constructive. He sought to replace a materialistic centralized order. से कौन चाहते कि आमर गोटे प्रॉफिट ओरिएंटेड और सेंट्रलाइज गवर्नमेंट बदल रे से गोटे डिसेंट्रलाइज एथिकल एंड स्पिरिचुअल रूटेड सिविलाइजेशन चाहते इन द एज ऑफ क्लाइमेट चेंज political disillusionment and rising inequalities. Gandhi's thought offer a radical yet relevant counterpoint to the Western modernity. Okay, that's the conclusion. तेणु तमर जो 15 मार्क रे क्वेश्चन मु तुमको कहली ओके तमे कोन कोन एथिरे रहिला देखो आउथे मु तुमको कहि दोछि ओके तो दीटा पार्ट एथिरे अछि गोटे वेस्टर्नाइजेशन अगेंस्ट रे आ गोटे आमर कोन ना डेमोक्रेसी रे कोन को टाइप रो डेमोक्रेसी सो आमे देखिले जे इंट्रोडक्शन तमे लिखिले जे जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन और मॉडर्न डेमोक्रेसी पे तांकर थॉट कोठी से लिखि छन हिंद स्वराज भाई लिखछन तो से तांकर इंट्रोडक्शन लिखुतले कि जे वेस्टर्न मॉडर्निटी हो जे मोरल एंड स्पिरिचुअल बैंक प्रोजेक्ट ओके तो हमर जो एबे जो वेस्टर्नाइजेशन मोस्ट हमर फोकस कर जे कोथरे मटेरियलिज्म वायलेंस मेकानाइजेशन तमे देखु जो एग्जांपल दे परिबो रशिया यूक्रेन वार की इस्राइल हमरा ईरान रो वार बोली हमरा कहतले ओके तापर हम देखले वेस्टर्न सिविलाइजेशन अगेंस्ट रे कोन हमें कहितले जे से वेस्टर्न सिविलाइजेशन अगेंस्ट रे कहतले ओके इंडस्ट्रियलाइजेशन अगेंस्ट रे कहतले कि जदी इंडस्ट्रियलिज्म आसीबो ताल डिह्यूमनाइज हे जेबो तो हमर मनीष मानकर कोन दरकार सब तो मशीन करबे एबे देखो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आसिलानी तो तमे आहुरी लोक मानकर माने कोन जॉब पळेबो जी गोटे लोकोटे क्लर्क काम करूथला रिपोर्ट बनौथला बसिकी हमरो लेटर लिखुथला बसिकी तमे चैट जीपीटी रे को मेक ए रिपोर्ट ऑन दिस माने 2 मिनिट भीतर तुमको रिपोर्ट रेडी करके दे दबो लेटर लिखि के दे दबो आंसर लिखि के दे दबो कोन दरकार तमरो फ्यूचर तमे कहबो जो पिक्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करी कि तमरो रोबोट एबे न्यूज़ पढुछि ओ टीवी रे जो हमरा लिसा बोली गोटे रोबोट रो हमें कहूचे तो सी न्यूज पेपर न्यूज पढुछन्दी हमरा जो वेदर फोरकास्ट तो आगु को धर सेठी जने हमर कोन ना न्यूज एंकर दरकार थिला जे कि पढी थाना न्यूज पेपर थाना रोबोट पढुछ ओके तेणु धीरे धीरे सब जिंस को जदी हमें कोन करबा ऑटोमेशन करि देबा मनीष रे कोन दरकार ओके एबे सब जिंस मेसिन जदि करिवो ताहले मनीष मानकर रिक्वायरमेंट ही रहइबो डिह्यूमनाइज बोली हमें कहबो ओके तो गांधी जी हम जो कहले जे मेसिन स्लेव ऑफ मेसिन हे जीवो डिह्यूमनाइज हमरो हे जीवो तो सेति पई तांकर जो आईडिया थिला प्रोडक्शन बाय मासेस रादर देन मास प्रोडक्शन बाय मेसिन तेणु तापरे गांधी जी जो इम्पोर्टेंट कोन ये कहले जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन रहउछंती से माने तांकर कोनोसी मोरल कंपास नाही टुवर्ड्स द सोसाइटी दे से मानकर ड्यूटी माने धर्म इन फेवर ऑफ राइट से माने केबे भाबंती कोटा ठीक कोटा भूल से माने भाबंती तांको प्रॉफिट जोथरे से एथरे म देखंदी सेति पे हमें कोन कहूचे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहला तो दीज आर लेड टू वायलेंस और इंपेरियलिज्म कथा हमरा कहतले साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमर डेवलप कराइतला कि एटॉमिक एनर्जी पई कि ताको यूटिलाइज कराउचे एटॉम बम ओके सो गांधी जी हमर कोन ना डेमोक्रेसी पर कोन कहतले ये कहतले जे पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट होची गुड फॉर द सोसाइटी सी कहतले जदी इंस्टीट्यूशन वायलेंस होची जदी हमें फ्यू लोकन हाथ पावर दे दबा से माने ताकर मोनोपोली करी कि निज मन इच्छा रे से माने वायलेंस करछने हमें एग्जांपल देले जो हमें कोन ना तमरो मिस यूटिलाइज करा होची डिफरेंट इंस्टीट्यूशन लाइक तमरो
सीबीसी है सीबीआई है ईडी है तो ये ओभर ब्यूरोक्रेटाइजेशन डोमिनेशन आम देखुचे जो मैंने मिनिस्टर रहिले आईएएस ओएस रहिले से माने पूरा कौन होचली पावर ग्राब करके बसिछन कॉमन लोक माने को कोनोसी बेनिफिट मिलोनी ओके तेणु ये आम सी कहते जे आउ जो पॉलिटिक्स एबे चली विदाउट एथिक्स लोक मैंने भावु ना कोटा ठीक कोटा भूल तेणु मन इच्छा तुम देखुव जो माने पॉलिटिशियन से निजको माने गॉड बोली भावती देखुच पुलिस मान कलर धरिक पिटी पकाउछन्ती एमाने कहते आमर तुम कौन कर मु तो एमएलए मु तो एमपी मोर केही किछि करि परिबेनी ओके किंतु भोट मागिला बेलू तुमको केते रिक्वेस्ट करी मागिबे किंतु वंस दे केम इनटू पावर दे फॉरगेट ऑल अबाउट एथिक्स मोरालिटी एवडा को से पूरा भूली जाते ओके सो ये जो हमें जो कहले सो को थिंकर मानकर से इंस्पायर्ड हेसंती तांका पॉजिटिव थिंक कोन आ नेगेटिव थिंक कोन कंक्लूजन कोन हमें लिखले ओके एति की बुझी पालो ना बुझी पालोनी ए क्वेश्चन तुमको दिया है जो डायरेक्टली आकु ही पढिबो एडा दिके हमें माने डिफिकल्ट वर्ड एथरे यूज करछे कोन पई यूज करछे कारण पॉलिटिकल साइंस रे तमे ए भलिया वर्ड न लिखिले ओके तो पॉलिटिकल साइंस रा फ्लेवर आसीबनी जेमति कि हमें कहले इंडस्ट्रियलिज्म तो एडा ह्यूमनाइज कर दो माने कोन लोक मानकर दरकार नहीं ओके इट विल बिकम स्लेव ऑफ मशीन एमिति तुम लिखिबो प्रोडक्शन बाय मासेस रादर देन मास प्रोडक्शन बाय मशीन ओके तो तांकर हमें कहले जे हमर कोन ना वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज अबंडन धर्म इन फेवर ऑफ राइट्स ओके तो एग्जांपल तुम दबो देके तुम लिखिबो कार किसी डाउट अछि ए क्वेश्चन रे केमति लिखा हो आईडिया असला केमति लिखा हो सर केते पेज भीतर आको लेखा पड़ अढ़ाई पेज लिखा हो सुनो जोटा तमरो एठी मु देखि दोछि क्वेश्चन देखि दोछि से कोन लिखा है जे एठी 250 वर्ड्स हला जोड़ा हमरो 15 मार्क रो क्वेश्चन सेटा 250 वर्ड जोटा 20 मार्क रो क्वेश्चन सेटा 300 वर्ड तेणु तमे जदि गोटे धाड़ी लिखुछ 5टा खंडे वर्ड रहउछ ओके आ गोटे पेज रे 20टा खंडे धाड़ी रहउछ तो गोटे पेज माने अप्रोक्सीमेटली तमरो 100 वर्ड ओके तो गोटे पेज लिखिलो ता नेक्स्ट पेज ता लिखिलो आउ 100 वर्ड आउ अधा तो अराउंड तमे 2.5 पेज माने एपट सेपट मिसी की तमे लिखिबो 15 मार्क ओके सर बुझी पालो ना बुझी पालो एमिदी कोन करबा ना हमें पूरा जतक क्वेश्चन पढ़ी छी तार डिस्कशन करबा आगो कांसेप्ट पढ़िबा तापर तार डिस्कशन करबा आउ तापर मु तुमको ए मॉडल आंसर प्रोवाइड करबी बुझे देबी तापर कोन करबो ना तमे आकु पढ़िबो दि तीन थरा पढ़िबो ए क्वेश्चन कारण गांधी जी को ऊपर पढ़िबो पढ़िले हमें कोन करबा ना कोन लिखिबा सेटा हमें देखिबा ओके मु अंबेडकर टॉपिक तो पूरा टोटल कवर करेनी ओके हमर जो पढ़ितला जे आउट क्वेश्चन माने लास्ट ईयर पढ़ितला जोटा जे क्रिटिकली एग्जामिन महात्मा गांधी's political philosophy how does the concept of non-violence compare the Ambedkar approach of social justice तो अंबेडकर सोशल जस्टिस हम पढ़िने तो मते कुह गांधी जी नॉन वायलेंस ऊपर कोन कहथि कोन आए माने गांधी तो नॉन वायलेंस ऊपर हमर ट्रूथ और नॉन वायलेंस कथा हमर कहथि तो तापर कोन ए क्वेश्चन जो हमर कहथले जे गांधी जी कर नॉन वायलेंस को तमे कंपेयर करिवो अंबेडकर सोशल जस्टिस ओके तो एटा हमर क्वेश्चन पढ़ितला critically examine Gandhi's political philosophy how does his concept of agar tankar kon political philosophy thila tapare tankar non violence upare amaro tame compare karibo social justice of Ambedkar kar so ame discussion kariba eta
जे गांधीजीଙ୍କର ଆମର କଣ ଥିଲା की पॉइंट हमर गांधीजी कौन कहउथिले नॉन वायलेंस कथा कहउथिले ना नहीं गांधीजीଙ୍କର जो आमे कहिथिले 6-7टा पॉइंट पड़थिले गोटे नॉन वायलेंस कथा कहिथिले गोटे ट्रुथ कथा कहिथिले सत्याग्रह कथा कहिथिले गोटे स्वराज कथा कहिथिले ग्राम स्वराज जे हमर डायरेक्टली कोन हबो ना विलेज को दिया हबो डिसेंट्रलाइजेशन कथा कहिथिले ट्रस्टीशिप से कहउथिले जे हमर कोन ना जत्ति की तमरो वेल्थ दरकार निजे सेति की यूटिलाइज करी की रेस्ट ऑफ द I mean donate कर दियो you are not the owner of your property okay so तापरे हमर सर्वोदय कथा कहिथिले okay welfare of all समस्तंगर डेवलपमेंट कथा हमर कहिथिले okay तो आमे गांधींकर जो पॉलिटिकल फिलोसफी कथा हमें कहले गांधी जी तांकर कोन हमर इंपोर्टेंट फिलोसफी थिला गांधी जी नॉन वायलेंस ऊपर बिलीव कर अहिंसा ऊपर बिलीव करथिले गांधी जी कहले जे core of Gandhi's thought is not just a strategy but way of life से कहले जे transform the oppressor through the self suffering से कहले तमरो जे शत्रु ना से भी तमरो गोटे पार्ट तेणु तमे ताको ता माइंड और हार्ट को चेंज करि परिबो निजे कष्ट रुह निजे पेन नियो किंतु ताको केबे हार्म करन तम शत्रु तमे से ऑटोमेटिक कोन हबो ना तुमको भल पाइ जिवो से तुमको तार हार्ट चेंज हे जिवो तुम तेणु सी कहले जे माय एनिमी इज आल्सो ए पार्ट ऑफ मी मु एमिति किछि मोर गोटे खराब गुण थिबो सेति में से मोर एनिमी हे जायछि ओके सेति में से मोर एनिमी हे जायछि तेणु हमर कोन होछि ना गांधी सेति में कोन ना ट्रांसफॉर्म द ऑफिसर थ्रू सेल्फ सफरिंग तपस्या जे तमे निजे कष्ट दियो अन्य को चेंज करिया सेति में गांधी जी कहउतले जे तमे यदि गोटिए गाल को चापड़ा मारुछि जणे आर गाल को भी देखिए दियो ओके तो तांकर एटा सत्याग्रह से कहउतले जे जीवन सबठु तो माने ट्रुथ इज गॉड एंड गॉड इज ट्रुथ जे सत्य ही होछन्ती भगवान तेणु जहाँ भी जाओ यू शुड ऑलवेज follow the path of truth a method of resistance based on moral legitimate okay not coercive power कथा कुही okay politics become ethical practice कथा कहउतले जे नहीं हमें politics जोटा लोक माननको भल पई हमें करिवा rather than हमें bad politics नहीं निजर पावर पई निजे इंडिविजुअल रो माने बेनिफिट पे हमें करबे सोसाइटी रे डेवलपमेंट कथा हमें कहतले स्वराज कथा हमें कहतले जे हमरा को टाइप रो हमें जो डेमोक्रेसी रहिबा दरकार सी कहतले जे हमरा विलेज कम्युनिटी कथा कहतले ओके ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत कथा कहतले डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जे पावर टा केते जण आज का डेट रे तमे देखो इंडिया रे जहा डिसीजन होची मोदी होचंती मेन लोक जे डिसाइड कर मोदी कहबे 5 टंगे चलिबनी तो चलिबनी मोदी कहबे बे हमर कोन ना मेन हमर कोन होची ना जदी हमर हमें कोन करिबा ना समस्त कोरोना टाइम रे थाली बसी की बाडेबे तो करिबा तो मन जहां भी मेजर डिसीजन होची हमर जत्तक इंपोर्टेंट पोस्ट जो माने रहउछंती इलेक्शन कमिशन हो किंबा सीएजी हो सीबीआई हो समस्त अपॉइंटमेंट पछरे कहार हाथ रोच सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ रोच तेणु से माने कोन कोस ना पावर टाकू सेंट्रलाइज करके रखुछन नै इंडिया रे जहा डिसीजन हबो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करूछन हमें सब लोक तो सेटा को जस्ट फॉलो करूछे तेणु मोर सेंट्रलाइज होची डिसेंट्रलाइज माने कोन ना जदी तमे पावर टा डिस्ट्रीब्यूट कर देला कॉमन लोक माने डिसाइड करूछंती व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड फॉर देम तो सेटा को हमें डिसेंट्रलाइजेशन कथा हमें कहूची so he advocate for gram swaraj decentralization self reliant village trusteeship कथा कहउतले इकोनॉमिक फिलोसफी होया रिच एंड ट्रस्टी ऑफ द वेल्थ से कहले जो माने धनी लोक अछन दे आर नॉट द मुकेश अंबानी कर जति संपत्ति अछि एटा तांकर न तांको दरकार 5-10 कोटी दरकार खाइबा रहया पय सेति छाडी के से दान कर दियन तो से कहउतले जे ट्रस्टीशिप रे कोन कहउछन यू आर नॉट द ओनर तमे सेही वेल्थ रो जने जगुआली ट्रस्टी हिसाब रे अछ ओके तो यू आर नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और जहा रहिला तमे कोन करिवो ना बांटी दबो सर्वोदय माने डेवलपमेंट ऑफ ऑल कथा कहउतले जे कहिले
जे हमर जेंति पुअरेस्ट माने को केमते हमर बेनिफिट मिले अंत्योदय प्रिंसिपल माने लाइन जे धाडी रे जे लास्ट लाइन रो धाडी रे जे लास्ट रे ठिया छै ताकू भी बेनिफिट पहुंचवा दरकार समस्तंकर डेवलपमेंट हवा दरकार अंत्योदय कथा हमें कहते ओके एंड गांधी जी एथिरे हमें कोन ना किंतु तमरा जदि अंबेडकर सोशल जस्टिस देखिबो अंबेडकर पूरा गांधी एगेस्ट थिले गांधी चाहूले विलेज पंचायत अंबेडकर चाहूले कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहे दरकार गांधी जी हमर इंडस्ट्री एगेस्ट रे थिले ये कहले इंडस्ट्री न रहले देश आगु केंदी जीवो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जदि तमे डेवलपमेंट न करबो त देश आगु केमिति जीवो अंबेडकर यूटिलिटेरियनिज्म रे बिलीव करूथले कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रे बिलीव करूथले फोकस ऑन लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी इज द एसेंशियल फॉर जस्टिस बोली से कहउतले सी कहउतले जे कास्ट सिस्टम अगेंस्ट से फाइट करथले अंबेडकर नि दलित लोक थिले तो ये कहउतले जे ए कास्ट सिस्टम जो अछि एटा हिंदुइज्म रे गोटे सबुठो बैड थिंग बोली से कहउतले आर्गुड कास्ट इज ए रिलीजियसली सैंक्शन सिस्टम ग्रेडेड इनइक्वालिटीज कहले यस हिंदुइज्म जो अछि तो इनहेरेंटली एंटी डेमोक्रेटिक बोली से कहउतले सेति में से कहले जे मु जन्म हेछि हिंदू हेकि किनु मरिबिनी हिंदू हेकि से सेति में कोन करिवे बुद्धिज्म को कन्वर्ट हे जैथिबे कहबे हिंदू धर्म रे एते सब उ प्रथा अछि लोक माने को मंदिर भीतर को एंट्री नै गोटे ब्राह्मण घर को तमे गल्ला माने गोटे माने लोअर कास्ट लोक यदि जाउछि ता दुआर ऊपर को उठी परनी से जो माने रास्ता रे ठिया ही कथा बार्ता करियो तो ये भले जो इनइक्वालिटीज अच्छी सोसाइटी रे अनटचेबिलिटीज प्रैक्टिस करा जाउछि तो सेति में से कहले देखो ब्राह्मण माने कोन करछन्ती सोसाइटी रे डोमिनेट करके रखछन ओके तेणु से से कास्ट सिस्टम एगेस्ट थिले से तो कहउतले मोर जदी बस चलिबो माने मो पाखरे से निजे डायनामाइट कोन करथिले ना मनुस्मृति को जाली देथिले पब्लिकली ओके से कहले मु डायनामाइट लगे देबी जो उपनिषद आ मनुस्मृति जो हिंदुइज्म रा जो जो ग्रंथ अछि ता ऊपर मु डायनामाइट लगे देबी आ से मनुस्मृति को पब्लिक जाली भी देथिले ओके तेणु सेति में हमर कोन ना सी कास्ट सिस्टम एगेंस्ट थिले किंतु गांधी जी कास्ट सिस्टम फॉर थिले गांधी जी कहउतले कि कोन करबो मु माने तमरो से कास्ट सिस्टम अछि सो दैट हमर डिवीजन ऑफ लेबर हबो सो दैट तमे जदी ब्राह्मण जात्रे जन्म है तुमको तम अनुसार काम करिवो जे शूद्र अछि से अनुसार काम करिवो ओके तेणु ये कोन करूथिले ना गांधी जी अहिंसा नीति एगेंस्ट थिले गांधी जी खाली देखे होछंती अनटचेबिलिटी अहिंसा किंतु रियली से मोस्ट वायलेंट पर्सन ओके तमे एटा कोन करबा नेक्स्ट क्लास रे मु तुमको कहिबी एंड अंबेडकर को ऊपर हमें पढ़िबा अंबेडकर को ऊपर पढ़िने पढ़िला पर ए क्वेश्चन करबा सो दैट तमे कंपेयर करि परिबो जे गांधी और अंबेडकर के भितर कोन हमरो डिफरेंस थिला ओके जने चाहूला इंडस्ट्री जने अंबेडकर चाहूले इंडस्ट्री हेवी इंडस्ट्री मॉडर्न इंडस्ट्री आसु गांधी के चाहूनथले अंबेडकर चाहूले पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जोटा कि हमर वर्तमान चली आ संविधान तैयारी कला बेले से भी ता फरे कहितले किंतु गांधी जी चाहूले कोन ना विलेज पंचायत कथा हमर चाहूले गांधी जी हमर कास्ट सिस्टम को हमर सपोर्ट करूथले से कहले जहां भूल अछि हिंदुइज्म में त ठीक करिया किंतु ये कोन अनहिलेशन ऑफ कास्ट ये कहले नहीं पूरा कास्ट सिस्टम को हटाओ ओके तो ये सब गुडा हमर हमें देखिबा तो ये मोर सेंट्रलाइज हमर गांधी जी चाहूले मोर डिसेंट्रलाइजेशन किंतु ये चाहूले ना हमर लिबरल डेमोक्रेटिक हमर रहिबा ओके ओके सो ये जोटा हमर रहला मैं अंबेडकर को पढ़ी सला पारे ए क्वेश्चन टा करबा गुडाए क्वेश्चन अछि दे तीनटा आखरी गुडाए क्वेश्चन अछि मु जो जो गुडा पार्ट पढ़ी पढ़ी जिबा तार क्वेश्चन भी करी करी जिबा सो दैट तमे बुझिलो आउ ताकू आंसर भी तमरा रेडी ओके आकू खाली कोन करियार अछि लेखिबार अछि जेतरा हमें मॉक टेस्ट करबा सेठी तमे बुझिचो ए पॉइंट्स गुडा को डायरेक्टली लिखिबार अछि ओके सो ठीक अछि
सो थैंक यू एवरीवन आज पे हम एतिकी सर यार रेकॉर्डिंग क्लास टा कोठ मिलिबो पॉलिटिकल दिया जीवो हां रिकॉर्डिंग दिया जीवो ना आगे सर सर आ जो करेंट जो मॉक टेस्ट जे से जो मैडम क्लास नथले तांकर क्लास रो रेकॉर्डिंग तो आसीबी हां हां मिल जीवो रखा आगे सर ओके सर ठीक अछि बुझी पालो कार किछि डाउट अछि एथिरे किछि बुझा पडुछि ना नहीं डिफिकल्ट बहुत लागुछि नो सर क्या को डिफिकल्ट देखो आमे पॉलिटी जेतले पढिना से तो इजी पॉलिटी फॉलिटी तमे पढुचे आमे पढुचे माने जीएस रे पढिबा से पार्ट तो पूरा हे जिवो एंड मु सेउडा के भी भल से पढाई देबी किंतु एई पार्ट ता पिला को बहुत डिफिकल्ट लागे ए जो थ्योरी पार्ट रे आमे जो थर्ड पार्ट ता किंतु तमे भाबो जदी थारे बुझी गलो ताकू ही लिखिबार अछि आ तमे मने रखो लास्ट टाइम जेते पिला टॉप 20 भितरे पाइछन मैक्सिमम पिला पॉलिटिकल साइंस सबुठो लास्ट टाइम जदी कोनोसी सब्जेक्ट सबुठो बेस्ट करिछि आ बेटर करिछि भलो मार्क देइछंती तो सेटा ओके रैंक 4 पॉलिटिकल साइंस रैंक 45 पॉलिटिकल साइंस रैंक 12 पॉलिटिकल साइंस ओके मेजर पिला पॉलिटिकल साइंस नै कि हमरो करछंती आ एटा गोटे सब्जेक्ट जोटा तुमको सबुठी हेल्प करबो तमरो प्रीलिम मेन इंटरव्यू सबुतरे हेल्प करबो ओके तेणु डोंट वरी मु अच्छी तुमको पूरा मॉडल आंसर बनै की देवी एंड तुमको टोटल भल से बुझे देवी ओके तापरे तुम काम हला पढिबो आउ से जो आमे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिबा ताकू भल से टिके बुझिबो तापरे कोन करिवो ना मॉक टेस्ट प्रैक्टिस रे तमे लिखिबो सेति के हेले यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क तमे भल मार्क तुमरा रहिबो ओके ठीक अछि थैंक यू थैंक यू Good night, sir. सर गुड नाइट Thank you, sir.